you, such as, so I'm going to just explain you some of the questions, such as there can be 4 angles given in the form of ratios. So this is based on general property of quadrilateral. What is the general property of quadrilaterals? About that is angle sum property of quadrilateral. So you need to read the question twice, first of all, and try to catch the keywords, bache. Such as 4 angles of quadrilateral are in ratio, suppose it is given. So 1 ratio, 2 ratio, 3 ratio, 4, or something like that. So what is the keyword here? You have catched the keyword quadrilateral first of all, and then 4 angles. So quickly recap in your mind, what is the property given related to angles and quadrilaterals? Ma'am, the sum will be 360. Very good. And you know that ratio wala question I have always told you कि Yes, ma'am. जैसे पर हाँ x multiply कर दिया, and then you can just do up what property you just said. So 1x plus 2x plus 3x plus 4x, it should be equal to 360. Okay, ma'am. After getting it, you will be getting the value of x easily. And after getting it, might be question में थोड़ा twist डाल दें कि which is the smallest angle or which is the greatest angle. So you know that ratio wise कि smallest will be 1x. This question is easy. Yeah, and greatest will be 4x. So one type of question is this one. In the same type of questions, it can be कि 2 angles of parallelogram. They have again changed little bit language. कि 2 angles of parallelogram are in ratio, suppose 3:5. So now the keywords have changed. It is parallelogram and only 2 angles. So can you knock? Adjacent or opposite? Yes, that is a good question. Opposite हो सकते हैं क्या? आप बताओ. Parallelogram में तो opposite angles same होंगे ना? Yes, ma'am. Ma'am, so adjacent. So 5x plus 3x, 8x is equal to 180. Very good. Absolutely correct. That's again a good click. You got that. कि adjacent angles का sum जो होता है, that is equal to 180 degree. So 3x plus 5x is equal to 180. And hence you can tell me all the angles of parallelogram. Third type of question can be कि one of the angle of rhombus is 30 degree. Find rest all the angles. Now what is the click here? Rhombus and only one angle. So rhombus properties we need to recap and opposite angles first. Okay, good. So angle and then adjacent, so we'll get all the angles. Very good. Absolutely correct. It's again correct. So rhombus के हमको चारों angles easily पता चल सकते हैं. These were about the angles. Now let's just focus on some of the questions which can be related to sides or something. So in those type of doubt in the question paper too. Okay. Should I show you the question paper? Yes, ma'am. Okay, I'm showing you. MCQ portion is not with me. Ma'am, it is not with me either. Like we have to submit the question paper. We have to mark in the question paper, so we have to submit it that way. That's why. So first page पे तो quadrilaterals का कोई question नहीं है. हम ये दो question उसी के हैं, 3 and 5th. Like 3 तो मेरा हो गया था. I got the question how to do it. I have doubt in 5th one. Like all the geometry question I'm asking. There is only 3, no 4. Okay, got it. And so the 5th question. 5th is not of quadrilaterals actually, but it's circles. Yeah, circles is little phobia for students. 35, 25 is given to you. What I could see. Okay, bache. Circles, I would say that the first thing which should come is which angle you have to find. Just see that which chord is making that angle, and is circle having any other angle made by the same chord? I'm repeating my. I don't think इसमें कुछ बन रहा था. CDA हमें ढूंढना है. So, मम CB. देखो बेटा, मैंने अभी एक लाइन बोली है. I'm repeating that line.
Yes, कि ma'am. आपको जो एंगल ढूंढना है, आपको सबसे पहली चीज वो ट्रैक करनी चाहिए इसमें कि वो एंगल किस कॉर्ड से बन रहा है, एंड इज द सेम कॉर्ड मेकिंग एनी अदर एंगल इन द सर्कल. Yes, ma'am. सो यहाँ पर हम दो चीजें ध्यान देने वाले हैं. तो फर्स्ट थिंग, दिस एंगल हैज टू बी फाइंड आउट, CDA, एंड दिस एंगल इज मेड बाय CA. आई एम करेक्ट? Ma'am, CA. हाँ जी बच्चे, एक इमेजिनरी Okay, आप. we drawing that. Yes, yes, yes. तो CA is making any other angle also? Ma'am, angle. This is what? Ma'am, this B. Ma'am, ABC. Good, good again. ABC. क्या ABC ढूंढा जा सकता है? Yes, ABC ma'am. Ma'am, by the is triangle this CBP. If we very see, good. so we Very have good. P and C, 35 and 25. So I found this to be 120. No. No, no. CBA. Okay, Ma'am, interior बन रहा है. yes, ma'am. Jo, like I have mentioned 120 in the paper it is written. तो बेटा आपने इसको एक्सटीरियर एंगल से डायरेक्ट क्यों नहीं सोचा? इट्स एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल. इट्स ओके, दैट आल्सो इज फाइन, बट इट विल टेक टाइम. So these are the shortcut tricks also, ना, कि आपने पहले अंदर वाला ढूंढा, फिर आप एक्सटीरियर ढूंढोगे. तो why not directly? Are you getting my point? कि Yes, this is ma'am. the exterior angle of a triangle. Interior angles are given 25 and 35. So 25 and 35, if you're going to add up, it is 60. So angle CBA is 60 degree. So you can easily tell me that CDA or ADC will also be 60 degree. ये मैं फिर से समझा देती हूँ बच्चे. Ma'am, I got it. हाँ, लेकिन एक मंत्रा पकड़ा इस क्वेश्चन में क्या है सर्कल्स वाले में, कि जो भी एंगल निकालने को बोला जाएगा, यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट कि सेम कॉर्ड इज मेकिंग एनी अदर एंगल, क्योंकि वो इजी होता है निकालना. दे आर आस्किंग यू दिस एंगल, बट इनडायरेक्टली दे वांट कि यू शुड फर्स्ट फाइंड आउट दिस एंगल, एंड दैट्स वेरी क्विक टू फाइंड आउट. एक दूसरी Yes. ट्रिक थी इसमें बेटा, वो भी समझा देती हूँ. If you can see here, BD chord is making also two angles. So 25 was given, though that was a lengthy one. So let's avoid that. आज रहने देते हैं, क्योंकि again and again, if two things are there, you will get confused. Only one angle was to find out in this one. Yeah. Yes, ma'am. The weightage and everything is going to be same for the retest. Ma'am, yes. Okay. So which one is the highest weightage chapter? You should first focus. Polynomials, but quadraturals के बहुत सारे questions थे in the objective paper too. ऐसा हो नहीं सकता, वेटेज के हिसाब से ही बना होगा, बट So, ma'am, like, see the higher marks question, ma'am. नहीं, पॉलिनोमियल्स भी देखो बहुत सारा दिख रहा है, आपको ऐसा लग Yes. रहा है. Okay, yes, ma'am. तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन पॉलिनोमियल्स फर्स्ट, जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन है. तो मैं एक बार आपको व्हाइट बोर्ड पे पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ पहले. But Because actually, I like did all quadrilaterals today, and I have doubts from NCERT too. So I was thinking we could do this today. Like we have time for polynomials too. A lot of time actually. ओके It's on नो Monday. ओके नो प्रॉब्लम. मैं क्वाड्रिलेटरल्स में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको पहले कोट करती हूँ, देन आई विल गो टू योर डाउट्स. Whenever any proof type of question is there, then also students get little confused, है ना. proof वाले questions में ज्यादातर आपको confusion हो जाता है. So see, in your course, if we just talk about that, तो square की properties, rectangle की properties, parallelogram की properties, rhombus की properties, and trapezium की properties, these 5 में से ही पूछे जाएंगे, and this is actually very low grade. So the focus is only on these 3. Because these 2 are little smaller class questions or something like that, you can understand. So our focus is on these, so you should be knowing the properties. And जब भी हम properties की बात करते हैं in rhombus की, in quadrilaterals की, you should talk about 3 things. First, इनके angles, second, इनकी sides, and third, इनके diagonals. So मैं randomly एक का पूछ लेती हूँ, because you have already recapitulated, so I don't want to discuss those things. But if you have any doubt, I will be doing it. आप मुझे rhombus की angles, diagonals and sides की properties बता दो बच्चे. Ma'am, पहले sides are opposite sides are like all the sides are equal in rhombus.
गुड. साइड्स के बारे में एक आपने ये बताया कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, एंड एनीथिंग एल्स? मैम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. यस, गुड. अब एंगल्स के बारे में बताओ बच्चे. मैम एंगल्स तो जैसे पैरेललोग्राम की सेम प्रॉपर्टीज होती है. करेक्ट. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स, या करेक्ट. गुड. हम एंड बाइसेक्टर्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्रीज, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. आपने तीनों प्रॉपर्टीज ठीक बताई बेटा. एग्जाम में भी ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको पहले क्लिक होनी चाहिए. सो जो भी क्वेश्चन प्रूफ का क्वेश्चन होगा, यू शुड अंडरस्टैंड कि सपोज एक क्वेश्चन है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम अगर इक्वल होते हैं, इफ दे आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल. आपको ये प्रूव करना है. देन प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल. सो यहाँ पर क्या कीवर्ड्स मिल रहे हैं पहले आपको? एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल. यस मैम. प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज दिमाग में आनी चाहिए, बट विच वन इज टू बी रिटन इन गिवन एंड विच वन इज टू बी रिटन टू प्रूव दैट? मैम गिवन विल बी पैरेललोग्राम एंड टू प्रूव विल बी रेक्टेंगल. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट अगेन. सो गिवन में आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, अगेन जस्ट रिमेंबर योर टीचर, साइड, एंगल, डायगोनल. हाँ, तीनों बातें आपको पहले लिख लेनी चाहिए. एंड देन टू प्रूव दैट में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज लिख लेनी चाहिए. एंड हियर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू विल कंपेयर कि कौन कौन सी कॉमन है. जब आप लिख लोगे तब कंपेयर कर लो पहले. सच एज साइड्स के बारे में बिल्कुल सेम बात है ना, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम की. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो दैट मींस आप ये प्रूव Triangle and नहीं. parallelogram are mostly the same except the 90 degree. यस. सो आप ये नहीं प्रूव करने वाले. एंगल्स यू आर सेइंग करेक्टली. सो एंगल्स में पैरेललोग्राम में दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बट हियर दे आर इक्वल टू 90 डिग्री. दैट मींस दिस यू नीड टू प्रूव. आपको ये प्रूव करना पड़ेगा. तीसरी बात, डायगोनल्स की उन्होंने खुद से क्वेश्चन में दे दी. डायगोनल्स में इसमें होता है दे आर नॉट इक्वल. पैरेललोग्राम में होता है कि दे आर नॉट इक्वल बट दे आर बाइसेक्टर्स. एंड उन्होंने बोल दिया क्वेश्चन में कि डायगोनल्स आर इक्वल. तो ये तो सेम हो गई, डायगोनल्स इसमें भी इक्वल होते हैं. सो दैट मींस आपको डायगोनल्स की प्रॉपर्टी भी नहीं करनी, आपको सिर्फ एंगल्स पे फोकस करना है. अब एंगल्स 90 डिग्री करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी इज द टूल. कुछ भी इक्वल करना है तो दैट इज कॉन्ग्रुएंसी इज द टूल वेयर यू आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. सो कॉन्ग्रुएंसी में आपको ऑब्वियसली इतने सारे कॉमन चीजें थी, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. कोई ना कोई 3 चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी ड्राइंग अ फिगर. हम रेक्टेंगल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बोला कि डायगोनल्स आर इक्वल. आपको 90 डिग्री प्रूव करने हैं, तो आपको एंगल ए या एंगल बी पूरा पूरा जिसमें आ रहा हो वो ट्राइंगल्स लेने हैं. तो एंगल ए जिसमें पूरा आ रहा है दैट इज दिस बिगर ट्राइंगल. एंगल बी जिसमें पूरा आ रहा है दैट इज दिस बिगर ट्राइंगल. You will prove congruency very easily because opposite sides are equal is given. This is common. Then आपको दिया हुआ है कि diagonals equal हैं. Question में दिया हुआ है कि diagonals are equal. तो आपको diagonals भी equal मिल गए. So you can very easily do up. This one will be done with SSS, I guess. Yes. एक बार आप बोलो. Congruency between DA. D in triangle. Just a second. हाँ yes ma'am. इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है बच्चे. Ma'am, so DAB and ma'am, CBA. So ma'am, DA is equal to CB. करेक्ट. AB First- is equal to AB common. करेक्ट. आप रीजंस लिख लेते हो ना इसके आगे. Yes ma'am. साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कॉमन या थर्ड क्वेश्चन पे दोबारा जाओ. वहां पे एक लाइन लिखी हुई थी कि इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ma'am, so CA is equal to DB. Correct. So the third thing is C is equal to DB. So these both are congruent by SSS condition. Hence, Yes. by CCT, angle A will be equal to angle B.
अभी आपने ये बोला कि इक्वल है, बट आपने ये नहीं बोला कि इट इज 90 डिग्री. सो दैट मीन्स आपको ऑल द ट्राइंगल्स में पहले करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी गेटिंग दिस पॉइंट. तो मैथ्स में इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी कि यू कैन राइट डाउन सिमिलरली. एक वर्ड है सिमिलरली, because you're not going to do up for all the 4 triangles again and again. So you can just write down similarly angle C will be equal to angle D. आप ऊपर भी ऐसी congruency prove कर दोगे, and then आप चारों angles आपको equal मिल गए, और by angle sum property we know that it is 360 degree. So अगर 4 angles हैं तो 360 divided by 4 it will be 90 degree. ये Yes, last ma'am. वाला point दोबारा बोलो. Ma'am, I got it. After doing one congruency, you actually need that it should be done. एक similarly word लिखकर आप ये कर सकते हो. So when all the 4 angles are equal according to angle sum property, each angle will be of 90 degree. That only you have to prove, and hence the question is done कि it is a rectangle. So properties पे कैसे पहुंचना है ये मैंने आपको सिखाया कि 2 keywords parallelogram and rectangle पहले हमने पकड़े, and properties इसकी लिखी, जो common थी वो करने की जरूरत नहीं है, which was uncommon we need to go there, and from here we reach that this is the rectangle. So Yes, ma'am. proof वाले questions की ये trick होती है. Yes, ma'am. Doubts बोलो. Ma'am, again in the question paper. Okay, I'm coming back. Yes, ma'am. Can I rotate it? I Ma'am, you guess. can pop and rotate. Yeah, question number 7. Yes, ma'am. This is again circle. Okay. तो आप क्वाड्रिलेटरल्स बोल के फिर सर्कल्स पे जा रहे हो, ऐसा कंफ्यूजन दिमाग में तो नहीं है ना? मतलब you know कि these Yeah, two ma'am, I different know. chapters are. Yes, ma'am, I know. Okay. I'm just talking about geometry. about- Question paper, sir. Okay. ADE पता लगाना है आपको, angle ADE. No, ma'am. We have to prove that D is parallel to BC, and we have to tell like what is angle. So what is triangle ADE? It's given in the question. Okay. Okay, got it. Yes, ma'am. And given things are ABC is an isosceles triangle. First thing is that B and C intersect. Yes, ma'am. Okay. Okay, got it. ठीक है बच्चे, तो only isosceles property was known to you. AB is equal to AC. And cyclic quadrilateral also, could you make Yes, it? ma'am, I could make it out that time too. Good, good. So one is isosceles property and another one is cyclic quadrilateral. Yes. Okay. So parallel lines पे पहुंचना है आपको, and parallel lines की property क्या होती है? दो properties. One, interior angles का sum 180. I told you about Z. Another one was Z if two parallel lines are there and a transversal is there. Interior opposite angles. Correct. So two properties में से कोई भी अगर आप एक prove कर सकते हो, then it is a parallel line. Yes, ma'am. So आपको angle वाली बात पता है कि isosceles है तो angle तो दोनों same है. ये वाला आपको help कर सकता है. And another thing you know, cyclic quadrilateral की भी एक property होती है. Ma'am, the same. क्या होती है? Cyclic quadrilateral की क्या opposite property? angles equal. Yes. Opposite angles equal? No. Ma'am, No, 180. Yes. Opposite angles का sum 180 होता है. Yes, ma'am. So opposite angles का sum 180 है यहाँ पे. आपको prove करना है कि इन दोनों का sum अगर 180 पता हो जाए, then it is co-interior angle वाली property.
आई एम रिपीटिंग दिस. आई टोल्ड यू कि पैरेलल लाइंस के लिए दो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चे, कि या तो को इंटीरियर एंगल्स, इनको को इंटीरियर बोलते हैं, विच आई हैव जस्ट शोन यू. को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, या फिर दूसरी प्रॉपर्टी कि z बन रहा हो कहीं पे एंड वो z बनने पे ये दोनों एंगल्स, सॉरी ये वाला लास्ट, ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए. ये दोनों में से आप कोई भी एक प्रॉपर्टी कर दोगे तो इट विल बी अ पैरेलल लाइन, बिकॉज योर फोकस वाज ऑन पैरेलल लाइन ना, आपको उधर जाना था. सो इट्स लाइक दैट. सो हमने ये स्टार्ट किया. तो आपने पहले क्वेश्चन पे ध्यान दिया कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल गिवन, एंड ma'am. आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख गया. So this plus this is 180 according to cyclic quadrilateral. Ma'am, angle DEC and ECB. Yeah. And आपने अभी भी बोला कि ये दोनों इक्वल हैं. Yes, अगर इन ma'am. दोनों का सम 180 है और आप कह रहे हो ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा ना. वही तो प्रूव करना था आपको बेटा. क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन था बस. आई एम रिपीटिंग अगेन. अकॉर्डिंग टू cyclic quadrilateral, this plus this is equal to 180 degree. And according to the question, this is equal to this. Therefore, this both are having, they are making supplementary angle, and hence co-interior angles जब मिल जाते हैं, तो these two lines are parallel. You want to write down somewhere? मैं लिख Yes, दूं? ma'am, but I'm not getting it. Can you repeat? हाँ बच्चे, देखो इस क्वेश्चन में दो ही बातें तो दी थी. One was isosceles. तो isosceles से you got it कि this angle is equal to this angle. And second Yes, thing ma'am. was cyclic quadrilateral. So cyclic quadrilateral में opposite angles का sum 180 होता है. So B plus E is 180 degree, and it's already given कि B is equal to C. So can I write down C plus E is also 180 degree? And you need to prove the same thing. आपको यही तो prove करना था. अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच के को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 हो जाए तो दे आर पैरेलल. Yes, ma'am. Once more. Yes, ma'am. ओके, आप दूसरी साइड से भी कर सकते हो, सच एज D plus C is also cyclic quadrilateral property ना. D plus C opposite angles is equal and C is equal to B. So I can write down B plus C is 180 degree and this is co-interior angle. Okay, ma'am. Got it. So these two lines are parallel. And then Now if we talk about ADE, so yeah, that will be isosceles. yes, absolutely correct. क्योंकि अब वो पैरेलल लाइंस हो चुकी हैं, तो जो Z वाली थी उससे आपको पता चल गया कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो भी सेम होंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये. Ma'am, ये तो जो वो भी हो सकता है ना, it's already given like AB is equal to AC ना, isosceles है. So AB is equal to AC, so AD is equal to AE. नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता बेटा. Ma'am, क्यों? अगर ये पोर्शन इसके इक्वल होता तो वो वाली बात प्रूव होती जो आप बोल रहे हो. ए बी इज इक्वल टू आप कह रहे हो ए सी हो, तो आप कह रहे हो ए डी इज इक्वल टू ए ई हो, ये बात फिक्स हो जाएगी. नो Ma'am, ये तो उसी ट्रायंगल पर उसी लाइन का पार्ट है. हाँ, तो लाइन का पार्ट है. ऐसे तो कहीं पे भी मैं कहीं पे ड्रॉ करूं बच्चे, ये लाइन बोल रही हूँ इसके इक्वल है, आप कह रहे हो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा. उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि ए डी और ए इक्वल हैं, अभी नहीं बोला उन्होंने. हाँ, yes, ma'am. Okay. सो इसमें बच्चे आप दो बातें कर सकते हो. जो आप बोल रहे हो वो वाली को हम थोड़ा ट्विस्ट करके डाल सकते हैं कि आपने बोला कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और ये पैरेलल लाइंस दी हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना ये. Ma'am, अगर ADE and ABC, yes. यस, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये दोनों वैसे इक्वल होंगे. और आप इस साइड से बोल रहे हो कि ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इधर इक्वल हैं, तो ये भी इक्वल हो गए, सब बराबर हो गए. दैट इज व्हाई दिस इज एन आइसोसेलेस. लाइक अगर ये दोनों एंगल इक्वल है D and E, तो फिर भी लाइक उसके बाद AD is equal to AE हो सकता है. हाँ, लेकिन आप अभी भी थोड़ा सा जल्दी जा रहे हो, आपको नहीं पता ये Opposite side, I think opposite angles नहीं. वो भी हम तब तक भी नहीं कह सकते बच्चे. अगर आप अच्छा. जो बात बोल रहे हो वो ए बी
AB is equal to AE given हो और साथ साथ BD और EC इक्वल गिवन हो, तब आप इनको माइनस करके वो बात बोल सकते हो जो आप बोल रहे हो। अगर ये पूरी लाइन इस लाइन के इक्वल हो बच्चे, और फिर दूसरी बात दी हो कि ये पोर्शन इसके इक्वल है, तब अगर आप माइनस करोगे तो ये पोर्शन इसके इक्वल आएगा ना। यस मैम। ये 10th में एक्चुअली एक है थ्योरम है, बट अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दैट। तो वो उस थ्योरम से ये हमें तो पता है कि ये इक्वल ही आएगा, ऑब्वियसली इक्वल आएगा, बट व्हाट यू आर थिंकिंग कि वो सही नहीं सोच रहे आप। ओके मैम, बट ये तो हमें समझ में आ गया लाइक B and E वाला। वही वही ठीक है बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। फाइनल आंसर विल बी, या व्हाट अबाउट ट्रायंगल AD? So the final answer will be, it is also an isosceles triangle because angle this yes. is equal to angle D is equal to angle E. Yes ma'am. Okay. Ma'am, then question 12th, and then we can go to NCERT. Find P, Q and R. No, sorry. Find P, Q and R are the midpoints of sides BCC and AB, respectively of a triangle ABC. Okay. PR and okay, meet advice as that. Okay. You remember midpoint theorem in this one? Yes ma'am, like समझ में आ गया था, but फिर भी I didn't get कि ये कैसे होगा. It's not too confusing, I would say, but आपको every midpoint you have to pick it from the given conditions. जहाँ जहाँ midpoint, हाँ वो सारे RB, BP is equal to PC, like AQ is equal to QC, like वो तो आ गया था समझ में. देखो कौन कौन से मिड पॉइंट्स दिए हैं, P, Q एंड R, ठीक है, तो हम एक एक करके सबको लेंगे एंड देन जो जो उससे हाँ जो जो डिराइव करेंगे वो लिखते जाएंगे, ठीक है। Okay. तो P इज मिड पॉइंट, तो यहाँ पर बड़े ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है, एंड मिड पॉइंट थ्योरम में आपको पता चल गया कि RP इज पैरेलल टू AC इज गिवन एंड इट इज हाफ ऑफ इट। ये याद है आपको बच्चे मिड पॉइंट थ्योरम? Yes ma'am, so if you take ma'am, if P and R are midpoints of two sides, then जो line join करते हैं PR is parallel to AC and RP is half of AC also. Yes ma'am. So पहली चीज आपको मिल गई कि this is half of this. That means ये दोनों बराबर हो गए portions, ये भी पता चल गया ये parallelogram है. हाँ. This is equal to this, है ना? Okay. And midpoint is given Q. अब Q पे जा रहे हैं बेटा हम. Q and P. Yeah. So Q and R ले रही हूँ मैं पहले. Okay. आप P भी ले लो, it's not an issue. ये लिया. So when I'm taking, तब आप सिर्फ ये बड़ा ट्रायंगल फिर से देखो, but this time this is parallel to this, देखो. Yes ma'am. And it is parallel to BC. Yeah, and it is half of BC also. So similarly, QP will be parallel to AB and half of AB. Correct. So जब आपने ये देख लिया, अब आपको Q and P वाला देखो. Again you can see a line, this is parallel to this and half of it. Yes ma'am. So आपको सारे half of वाले तो मिल गए हैं. अब हम लास्ट वाली चीज पे जा रहे हैं. ये एक पैरेललोग्राम बन गया बीच में. अब due to these properties there is a parallelogram being formed. Okay? Like there are 3 parallelograms in this. Yes, absolutely correct. But मुझे तो सिर्फ XY वाले पे फोकस करना है ना. अच्छा, if we take X5 तो we'll take this one. हाँ, मतलब मुझे तो इधर जाना है ना, XY पे जाना है, तो मैं क्यों और क्वाड्रिलेटरल्स. अब मैं सिर्फ इस पे अगर फोकस कर रही हूँ बच्चे, सो इस पैरेललोग्राम में यू कैन सी दैट RC जो है एंड ये इसका मिड पॉइंट होता है, ये हमको पता है ऑलरेडी. Parallelogram bisect each other. Yes. Yes, diagonals bisect each other. So if you remember one of the line, converse of midpoint theorem, could you state that also कि अगर एक midpoint दिया होता है, एक midpoint दिया होता है जो third side के parallel होता है, so it will be the midpoint of the second side too. Absolutely correct.
तो आपको उस वाली प्रॉपर्टी से क्या पता चल गया, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, कि अगर ये मिड पॉइंट दिया हुआ है एंड इट इज पैरेलल टू दिस वन, so it will definitely go to the midpoint of this one. So xy is, that means Parallel half. to RQ. Yeah, Yes, PC. yes, very good. बस तो आपको मिल तो गया कि PC is already given कि वो half of DC है. एक सेकंड, मैं जो प्रूव करना है वहां जा रही हूँ. ये Wonderful BC, DC. या सो हमें पहले लाइन मिली कि हमें पहले लाइन मिली कि XY is half of PC, एंड हमको ये ऑलरेडी पता है कि PC जो था वो हाफ ऑफ BC था. Yes, ma'am. सो ये 1/4 हो गया बेटा. यही तो प्रूव करना था. Ma'am, can you repeat the last step? या व्हाई नॉट. हमने पहले इस छोटे ट्रायंगल में कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सोचा, एंड बाय दैट वी अंडरस्टैंड कि XY इज हाफ ऑफ PC, एंड वी ऑलरेडी न्यू फ्रॉम द बिगर ट्रायंगल जहां पे हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया था, वहां से हमको ऑलरेडी पता चल चुका था PC एंड ये दोनों सेम हो चुके थे. So PC is half of BC. So Yes, ma'am. half and half becomes 1/4 of BC. Okay. Got थोड़ा it, ma'am. हाँ, थोड़ा सा इन्होंने करा तो था troublesome, but I don't think now it's an issue. No, ma'am, it's not now. So, ma'am, I had doubts in NCERT. Could you read one? Yes, ma'am, I'm Or just the chapter. I was in the question paper. Just a second. Ma'am, in exercise 8.1, question 6. could you read? या मैं सीधे साइड पे ही जाऊं? As you wish, मुझे कोई टाइम नहीं लगेगा. I can tell you the question. नहीं, चलो साइड पे चलते हैं, कोई बात नहीं, 1 सेकेंड लगेगा. एक्सरसाइज एक बार दोबारा बोल देना बस. Ma'am, 8.1. Yeah, question number. Ma'am, question number 6. Sixth ka I have doubt in second part, not first. आप पहले सिर्फ यहीं पे पढ़ के मुझे ये बताओ, जो कीवर्ड्स हमने बात करी थी, इतनी सारी आपको ट्रेनिंग दी थी. सो पैरेललोग्राम के बारे में आपको पता है सारी प्रॉपर्टी, Angle and diagonal first. एंड आपको रोम्बस की तरफ जाना था. I'm given parallelogram and to prove rhombus. वेरी गुड. सो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी, वो नहीं जाना आपको, है ना? Uncommon को जाना. करेक्ट, वेरी गुड. सो अनकॉमन में आपको ये प्रूव करना है कि एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो इक्वल है. पहली चीज. सो वही कराया इन्होंने बच्चे सेकंड पार्ट में. उसके लिए तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी. आप अगर फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके, कैसे होगा इसमें? देखो first I did it like one second. I'm like first wala to it was like after my training can you please try it again? I would request आप एक बार फिर से ट्राई करो. आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, तो आपने ये बड़े ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है ना? क्या आप इसमें 3 बातें ढूंढ सकते हो? DCAB, DACB and CA. DC is equal to AB, AD is equal to BC, and this is common. इसमें तो more than 5 चीजें मिल जाती हैं बेटा, क्योंकि अभी आपने ये ऊपर भी प्रूव कर चुके हो कि C is also bisector, and ये ऑलरेडी बाइसेक्टर दिया हुआ था. और ये भी आपको पता है कि ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं. इसमें तो सारी बातें मिल जाती है. कॉन्ग्रुएंसी में तो कोई डाउट ही नहीं होता इसमें. खुद से सोचो अब आप दोबारा. यही करके हमें बस यही करके CPCT से AB is equal to AD करना था. एब्सोल्युटली. मैंने आपको देखो जो ट्रेनिंग में दिया यही बात बताई ना,
कि जो पैरेललोग्राम एंड रोम्बस की कॉमन प्रॉपर्टीज हैं आपको वो तो प्रूव ही नहीं करनी, वो तो ऑलरेडी गिवन में हो गई ना। जो अनकॉमन थी कि पैरेललोग्राम एंड रोम्बस कैसे डिफरेंट है कि देयर एडजेसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल। वन थिंग इज दिस वन, एंड दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसके डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं बट पैरेललोग्राम के नहीं होते हैं, है ना। Yes. दूसरी प्रॉपर्टी वो है। तो विच वन इज इजी फॉर यू? दिस वन इज इजी फॉर यू कि to prove that this is an adjacent sides are also equal. So for that you will be choosing the congruency option, and for congruency more than 3, इसमें तो बच्चे सारी की सारी चीजें given है, 6 चीजें given है इसमें। Mom, like I got it, but mom, I thought कि like AB is equal to AD कैसे कहते हैं? AB is equal to DC होगा. हाँ, That's why. इधर भी कर अच्छा ओके। हाँ, तो जब आप इधर सोच रहे थे तब आपको ये वाला डायगोनल सोचना चाहिए था ना, तब आप ये वाले ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी कर सकते थे। यू वर करेक्ट एट दैट मोमेंट आल्सो। Okay, ma'am. कॉन्ग्रुएंसी के लिए दोनों अलग अलग पार्ट ट्रायंगल के होने चाहिए ना। अगर आप Yes. ये सोच रहे थे बच्चे कि आप इसको और इसको प्रूव करना चाहते हो तो आपको दूसरा थोड़ा सा एंगल लेना पड़ता ना। ये ट्रायंगल क्योंकि आप सेम आप ऐसे सोच रहे थे कि इसी में यू कैन जस्ट डू इट लाइक दैट। नो, यू कांट डू Ma'am, इट। इस पहले वही किया था, then I thought कि ऐसा नहीं होगा, उसके बाद इसलिए I thought कि और कैसे होगा कि सही हो जाए, करेक्ट। इसलिए. Okay, ma'am. So now question 9. या हाँ, ये थोड़ा सा टिपिकल है, आई अंडरस्टैंड। इसमें 3 बातें ढूंढने में आपको वो z ढूंढना पड़ता है। अगेन पैरेललोग्राम वर्ड इज देयर, पैरेलल लाइंस इज देयर। The only thing I don't get is AP is equal to CQ कैसे होगा, because we don't know anything about AQ, CP. No, you just think of this small triangles first. Small Again, triangle का first जो था APD and BCQ करना था, so we got that already given था. BQ is equal to क्या था मैम? BQ is equal to DP and BC is equal to AD, so because it's a parallelogram. But third thing I was not getting it. z पैरेललोग्राम है तो z ढूंढो बेटा। So ADP is equal to CBQ. Yes. Okay ma'am. Ma'am then आगे का AP is equal to CQ. इसके बाद तो बहुत इजी हो जाता है। जब फर्स्ट वन डन तो बाय CP/CT AP is equal to CQ, ये भी तो उसी ट्रायंगल का पार्ट है जो आपने अभी अभी प्रूव किया। हाँ. So CP/CT is done this. Then इस ट्रायंगल में भी वही सेम z, यहाँ से z इस बार ऐसे बनेगा, सेम बिल्कुल सेम पहले वाला जैसा बेटा। So if this is done, then by CP/CT this done. Yes ma'am. And after that ये दोनों से ये लास्ट वाला डन। अगर आपने सेकंड एंड फोर्थ कर लिया है तो फिर बनाने के बाद it's like all easy, but I gave this question at least 15 minutes में, but फिर भी कुछ समझ नहीं आया था. और अब इजी लग रहा होगा। मैम so yes ma'am, so like समझ में आने के लिए मैम like first points कैसे नोटिस करना है इसमें? अगेन द सेम थिंग, प्रैक्टिस मोर एंड कीवर्ड्स को पहले अंडरलाइन कर लो। इससे पैरेललोग्राम पता चला, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, which one to use। I remember that. हाँ, But then implement करने में उसमें हो जाता है। करेक्ट, आई अंडरस्टैंड कि which one to use ये क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, बट ये प्रैक्टिस से आ जाएगा बेटा। ओके मैम। आई एम श्योर आप बहुत मेहनत कर रहे हो एंड यू विल बी थ्रू विद दिस विद वेरी गुड फ्लाइंग कलर्स, सो डोंट वरी। अच्छी नींद लो, अच्छी डाइट लो, और कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। यस मैम। ओके, कल जरूरत होगी तो बता देना। हाँ मैम। ओके, बाय बच्चे। बाय मैम, थैंक यू मैम। यस मैम, बाय मैम।